Hello everyone. Today we will start the next topic in your physics book, and that is light energy. Now, before understanding this concept, what is light energy, so we have to know the meaning of energy. What is energy? The ability to do work is known as energy. ठीक है, that is energy. ठीक, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है? That is energy. तो जो एनर्जी हमें लाइट प्रोवाइड करती है, that is light energy. Means light energy is a combination of two words, that is light as well as energy. So light energy that causes sensation of vision, and without light we cannot see anything. ठीक है, आप लाइट के बिना कुछ भी नहीं देख सकते. तो लाइट के लिए हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन काम करता है इसके पीछे, एंड दैट इज अवर आई. ठीक है, तो आई क्या करती है, हमारी ये सारी चीजों को देखती है, ऑब्जर्व करती है और हमारे माइंड में डाटा को स्टोर कर देती है. तो इसमें लाइट एनर्जी में बेसिकली हमारा आई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट दिस CFL. ओके, it is on, that CFL is on because I just switch on this CFL. okay, तो CFL से क्या है, पूरे रूम में आपको लाइट प्रोवाइड हो रही है. now I just switch off this CFL. now you will see there is a darkness in the room. Okay, so my dear students, I hope you understand this concept that light plays a very important role in our life. Now, my dear students, you know that light always travel in a straight path, and that is known as rectilinear propagation. Light always travel करती है एक straight path में, जिसको हम rectilinear propagation कहते हैं. And propagation का मतलब क्या होता है, move कराना. Okay, now in your previous class you already read that light travels faster in air. सबसे ज्यादा जो लाइट होती है वो एयर में होती है, मतलब बहुत जल्दी फास्टली मूव करती है. तो लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर एंड और ग्लास. ओके, नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 meter per second, and in water 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, and in glass 2 into 10 to the power 8 meter per second. This is the speed of light when it travels in air, when it travels in water, and when it travels in glass. Okay, now as well as you can know that the speed of the light in air is 3 into 10 to the power 8. Means in the language of physics, we can say that the glass is optically denser than water, and water is optically denser than air, or air is optically rarer than both water as well as glass. A medium is said to be the denser if the speed of the light in it decreases, while it is said to be the rarer if the speed of the light is increases. Okay, now the next concept we are going to start is refraction of light. Refraction of लाइट. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये भी लाइट का ही एक फिनोमिनन है, जिसमें लाइट रे पर्टिकुलर सरफेस पे टकराती है और टकराने के बाद अपना मीडियम चेंज कर देती है. मींस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. The change in direction of path of light when it passes from one optically transparent medium to another optically transparent medium is known as refraction of light. तो refraction of light, light का एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लाइट क्या करती है, अपने पाथ को चेंज करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसको हम प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो देखिए, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, when a ray of light travel from rarer to denser medium, जब आपकी एयर से वो वाटर पे जा रही है. ठीक है, when a ray of light travel from rarer to denser medium, that means एयर से वाटर और ग्लास की ओर जा रही है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. जब कभी भी लाइट जो है एयर से वाटर और ग्लास मीडियम पे जाती है, तो ऑलवेज कैसी होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है. वहीं दूसरी ओर आपके सामने कंडीशन दे रखी है. जस्ट लुक एट दिस कंडीशन, व्हेन दिस रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स दैट फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, दिस दैट मीन्स वाटर से अगर रेयरर जा रही है,
ठीक है, तो तब कंडीशन क्या हो जाएगी, उसकी अपोजिट हो जाएगी, मींस इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गॉट इट? जब एयर से वाटर जा रही थी तो कैसी बेंड हो रही थी आपकी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो रही थी, और जब वाटर से एयर में जा रही थी तो इट बेंड्स away from the normal. This practically we can observe this. So this is known as refraction of light. Now after that the topic is sources of light. Light क्या है आपको पता है, light that causes sensation of vision. Light always travel in a straight path, that is known as rectilinear propagation. तो इस light के भी कुछ source होते हैं, तो आपको पता है there are two sources of light एनर्जी, दैट इज एक होता है आपका नेचुरल सोर्स और एक होता है आपका आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्स। गॉट इट? नेचुरल सोर्स क्या होते हैं, जो आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं लाइट, जैसे आप डेली देखते हैं सन को, स्टार्स को, मून को, तो ये सब क्या हो गए आपके नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गए, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लाइट प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा होता है आपका मैन मेड सोर्सेस। मैनमेड सोर्सेस क्या हो सकते हैं, जैसे आपके घरों पे बल्ब लगे होंगे, CFL लगे होंगे या आपके घर में ट्यूबलाइट्स लगे होंगे, जो इंसान बनाता है उसे हम कहते हैं मैन मेड सोर्सेस या आर्टिफिशियल सोर्सेस भी कहते हैं, और जो नेचुरली आपको प्रोवाइड होते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।